सो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऑटोमेटिक फिल्टरिंग करता है रेज्यूमेस की. सो अगर ऑटोमेटिक फिल्टरिंग में ही आपका रेज्यूमे बाहर हो गया, देन आई वुड से दैट विल बी अ बिट प्रॉब्लमैटिक. इतनी जो आपने मेहनत करी वो रिक्रूटर तक पहुंचे ही नहीं. Hey everyone, welcome back to the channel. I am Sanket Singh, currently working as a software engineer at Google, and welcome to my channel where we talk about tech, productivity, your career, gaming, software engineering, other engineering stuff, and etc etc. And I'm really excited to have this video today on my channel. So काफी लोगों ने request करा कि I should make some video around how a resume should look like. So obviously I'm not the best person to comment on a resume. I'm not an HR. So obviously HR का perspective होता है. I'm trying to get some HRs onboarded on my channel so that उनके साथ में उनके experiences share कर पाऊँ. वो क्या देखते हैं किसी resume में, वो क्या देखते हैं किसी candidate में, वो सब आपके साथ share कर पाऊँ. But in this video I'm going to like criticize or maybe judge और मे बी शो यू गाइज हाउ माई रेज्यूमे लुक लाइक, कि मैंने अपने रेज्यूमे में क्या चीज़ें डाली हुई हैं. अभी मुझे अपना रेज्यूमे लाइक काइंड ऑफ आइडिया लगता है, बट अगेन मैं बताऊंगा कि क्या ही चीज़ें डूज होती हैं, क्या डोंट्स होते हैं आपके रेज्यूमे के लिए. एंड अगेन दिस इज कम्प्लीटली माई ओपिनियन. मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि दिस इज definitely going to work for you, because this is something that worked for me. This is something that worked for few friends of mine or few students of mine, but definitely you can try and experiment on what kind of resume you should have. So without any further delay, let's just start. But before starting the video, एक छोटी सी request. Please do like the video. Please do subscribe to the channel. I can see I'm getting more than 6,000 views on videos, but you guys are not subscribing to the channel. So if you want more such awesome content, do hit the subscribe button, do hit the like button, share the video, and without any further delay, let's just start. So सबसे पहले जिस पार्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपके रिज्यूमे का सबसे हाईलाइटिंग पार्ट होता है, that is going to be your header. इस हेडर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका एक बोल्ड में नाम लिखा हो, साथ साथ आपके फोन नंबर और ईमेल एड्रेस के लिंक्स हो यहाँ पे. क्यों? क्योंकि यही आपके प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है. इसी से किसी रिक्रूटर को आपके बारे में पता लगेगा, आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे वो लोग, हायरिंग मैनेजर्स आपके पास कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो योर ईमेल एड्रेस एंड करेक्ट फोन नंबर शुड बी देयर. ट्राई करो कि ईमेल में अगर आप मेल टू लिंक लगा पाएं, और इवन फोन नंबर के लिए अगर फोन अवेलेबल है तो उसमें कुछ लिंक्स ऐड कर पाएं, सो दैट पीपल कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू फ्रॉम हेयर. उनको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े. दैट वुड बी अ +1. Apart from that, you should put your LinkedIn profile and your GitHub profile, क्योंकि LinkedIn profile से आपके past experiences के बारे में भी जाके पता लग जाएगा. आपका पूरा resume किसी को नहीं पढ़ना पड़ेगा. GitHub में आपके सारे projects, आपके open source contributions के बारे में पता लग जाएगा. So again, these two are going to be the most crucial piece of information that you need to take care of. Okay? क्या चीज़ हमें इस header में नहीं डालनी चाहिए? I believe कि आपका जो home address है, that should not be present here. Why? Like think about yourself. If you are applying for a domestic opportunity, तो आपके होम एड्रेस का क्या रेलेवेंस है? क्या आपको जो रिजेक्शन आएगा या एक्सेप्टेंस आएगा आपके घर पे डिलीवर होगा? नो, राइट? व्हाई? बिकॉज दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू वाया ईमेल. Yes, you can put your country and maybe your city, so that if you are applying for overseas opportunity, then they will be able to understand that okay, this candidate is coming from this continent or this country. But again, putting a whole address in your resume is not going to be helpful, and it will take a lot of space. You need to save space a lot. Apart from that, you should not provide any kind of introduction or a header where you are putting that why you are making this resume, or why do you want to apply somewhere, who are you, so on and so forth. Who are you is going to be defined by your whole resume, right? If your resume is not able to define who you are, then that 2 lines are not going to define you, definitely. So I would highly recommend save some space and keep your header as intact as possible. So second जो most important part रहेगा आपके रिज्यूमे का, जो मैंने भी अपने रिज्यूमे में काफी फोकस करके बनाया, सबसे ज्यादा टाइम इसी पार्ट पे मैंने स्पेंड करा. दैट पार्ट इज ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. ये जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का पार्ट है, इसमें आपकी सारी इंटर्नशिप, अगर आपने फुल टाइम कहीं पर काम किया है तो वो, अगर आपके पास और भी किस तरह का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी. अगर आपके पास फ्रीलांस एक्सपीरियंस है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कम अंडर योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. So you can see that I have currently written my professional experience with LinkedIn, with InterviewBit, and obviously with my Google Summer of Code opportunity, right? तो यहाँ पे आपको किस तरीके से चीजें डिफाइन करनी है. Your profile for which you were hired should be definitely mentioned. आपकी कंपनी मेंशन होनी चाहिए, और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का ये हाईलाइट दिख रहा होगा. मैं अभी इसको ओपन नहीं कर सकता, बट दिस इज गोइंग टू बी अ हाइपरलिंक. इस हाइपरलिंक से कोई भी मेरी कंपनी, जिस कंपनी के लिए मैंने काम करा था, उस कंपनी के पेज पे जा सकता है. इफ इट्स अ स्मॉल स्टार्टअप और अ मिड स्केल स्टार्टअप, तो उस कंपनी के पेज पे जा सकता है और उनका ओवरऑल मॉडल समझ सकता है कि ओके व्हाट दिस कंपनी डू, और ये जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट है, ये कैसे तरह के डोमेन में काम करके आ रहा है, राइट? सो आई हैव पुट अ लिंक फॉर LinkedIn here. You can see I have put a link for InterviewBit. I have put a link for the Berkman Klein Center at Howard University. So it's always good to put hyperlinks.
अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो भी ऑर्डरिंग ऑफ आई वुड से एक्सपीरियंस है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरी लेटेस्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए, जो आपकी लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो सबसे ऊपर हो, और आप उसमें प्रॉपर मंथ्स एंड ईयर मेंशन करिए. इट लुक्स क्वाइट प्रोफेशनल. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन पुट द लोकेशन दैट ओके आपने जीसॉफ्ट में काम करा या फिर इंटरव्यूबिट में काम करा या फिर लिंक्डइन में काम करा, तो आपने लिंक्डइन के कौन से ऑफिस से काम करा, बिकॉज लेट्स से सम कंपनीज आर आल्सो इन यूएस और यूरोप और सिंगापुर और इंडिया. सो नाउ हियर इट मेक्स सेंस टू पुट द लोकेशन दैट ओके यू आर वर्किंग विद लिंक्डइन बेंगलुरु और मे बी Amazon Hyderabad, so on and so forth, right? And now you guys can see that I have given a detailed explanation of all of my experiences, right? See, I have written that I have contributed on the LinkedIn enterprise provisioning application based on Java, Restly and Ember.js. So first line everywhere you will see worked on Ruby on Rails and React based project, worked on question tool app based on Meteor.js. Every time I put the basic tech stack on which I work, like the language and the frameworks that were involved. ये सबसे ज्यादा crucial piece of information होगा, क्योंकि let's see अगर कोई कंपनी Python Django के लिए हायर कर रही है and your latest experience was also with Python Django, then your chances are definitely increased, right? Apart from that, see, I have used some very catchy adjectives and words like contributing, working, right, and implemented, right, built, implemented. You can also use the words like engineered, right? These kind of words like makes your resume a bit catchy. यहाँ पे जो adjectives हैं वो काफी strong हैं. So अगर आप देख सकें यहाँ पे मैं लिखा है working on the LSS to UPP provisioning platform, migration including features like pre-ordering, system and business lifecycle and logic failure handling, provision monitoring, recovery lifecycle and grant of LSS product via CAP. So see, like it gives a basic gist on what exactly I was working on. I can give major details also, but you should try to be precise. You should in one line tell the people in which team you were working, for that team what you like exactly contributed to, so on and so forth. And after that you should put all your major contribution जिसने कुछ ना किसी ना किसी तरह का impact create करा, right? So if you talk about impact, so you can see that I am talking about this job slot product which reduced the on-call job slot debugging from 3 days to less than an hour. Now this is a quantitative analysis. If you are able to quantitatively define what you have worked on, what you are going to work to, so on and so forth, so that will show some impact कि अच्छा इस feature ने इतना बड़ा impact create करा है, right? So this is something that you need to take care of. See, और भी कई जगह मैंने impactful चीजें लिखी हैं, like implemented a React based feature for RefGraph mentor portal which increased the distinct referral counts to 989, and the referral conversation request to schedule ratio was 9.3 to 78.0%. So ऐसे आपको मेट्रिक्स ऐड करने हैं, ऐसे आपको ऐड करने हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जहां पे ये पता लगेगा कि अगर मैंने कोई इंपैक्ट करा, मेरे किसी प्रोजेक्ट ने या मेरे किसी छोटे फीचर ने कोई इंपैक्ट डाला, तो ओवरऑल बिजनेस पे कितना इंपैक्ट पड़ा, ओवरऑल इंजीनियरिंग पे कितना इंपैक्ट पड़ा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे, मे बी इंजीनियर्स के प्रोडक्टिविटी पे कितना इंपैक्ट पड़ा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सेल्स फिगर में अगर आपने बहुत बड़ा हाइक लाइक 1 से 2% का हाइक अगर आपने सेल्स फिगर में दिखाया है, तो दैट इज गोइंग टू बी इंपैक्टफुल. सो यू शुड राइट इंपैक्टफुल क्वांटिटेटिव थिंग्स दैट आई वर्कड ऑन दिस व्हिच लेड टू दिस, right? See the format. I worked on, let's say, something which led to your achievement, right? So this kind of format should be there, and you should even tell about your basic functionality. If let's say that has not been yet calculated, then also you can definitely put, see in this point I have not put any kind of quantitative things. So also if you are like specifically using a technology, like I have written here I used MobX for state management. So in React people use Redux, I used MobX there because our use case was fulfilled by MobX. So you should write these minute things also, that okay I used this particular thing, because that can create an impact that you knew your product well, you made the choices for the product well, so on and so forth, right? So this is going to be your part of your professional experience. Initial days में जब आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में रहते हैं तो ये पार्ट सबसे कम होता है और ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि जैसे जैसे ये बिल्डअप होने लगे यू शुड पुट मोस्ट ऑफ द कैची, अट्रैक्टिव एंड आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर, राइट? अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 2 कॉलम रिज्यूम है, तो ऑब्वियसली किसी की भी नजर जाएगी तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जाएगी और उसके बाद राइट साइड पे जाएगी. सो आपका जो मोस्ट क्रूशियल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो आपका लेफ्ट साइड पे अवेलेबल होना चाहिए और उसके बाद राइट साइड पे, क्योंकि ऐसा हो सकता है रिक्रूटर के पास 32 सेकंड्स टू 1 मिनट से 2 मिनट तक का टाइम होता है आपका रिज्यूमे देखने का, तो शायद वो पूरे के पूरे रिज्यूमे पे ना जा पाए. सो जितने भी रिज्यूमे पे उनकी नजर पड़े, दैट शुड बी द मोस्ट इंपैक्टफुल पार्ट दैट योर रिज्यूमे इज गोइंग टू प्रोवाइड. आर यू गाइस एबल टू गेट दिस पॉइंट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पार्ट जो कि मैंने लिखा हुआ है. यू गाइस कैन डेफिनेटली सी, मैंने यहाँ पे अच्छे से लिंक्स डाले हुए हैं,
इम्प्लीमेंटेड फीचर्स के गिटहब के लिंक, अगर लाइक यू हैव मेड सम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे आप गिटहब की पीआर की लिंक डालें जहाँ पे आपकी पीआर मर्ज हुई है, सो पीपल कैन लाइक जज योर वर्क। नेक्स्ट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, जो आपके राइट साइड पे पहला पार्ट होगा, वो आपकी प्रोफाइल्स होगी। अगर आपकी कोई भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की प्रोफाइल्स है या फिर वेबसाइट्स लाइक डेवफोलियो, वहां पे आपकी प्रोफाइल है, तो यू शुड पुट दोज प्रोफाइल हियर, राइट। आपकी अगर किसी नॉन टेक जगह पे प्रोफाइल है और आप किसी एसडी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट आपकी अगर कोई कोड शेफ, हैकर रैंक, कोड फोर्सेस की कॉम्पिटेटिव प्रोफाइल्स हैं, देन यू शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर देम। देन अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट्स है कि यार आपने कोई कॉन्टेस्ट जीता या कोई हैकाथॉन जीता या फिर कोई रिसर्च पेपर पे काम करा, तो ये आपकी अचीवमेंट्स है, यू शुड पुट योर अचीवमेंट्स ऑल्सो सेपरेटली। नाउ The next part that we are going to talk about is going to be internships. अब जैसे मैंने यहाँ पे अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अलग से लिखा हुआ है क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग एज अ फुल टाइम इंजीनियर, लाइक आई हैव ऑलरेडी वर्कड एट लिंक्डइन, इंटरव्यूट, करंटली आई एम वर्किंग एट गूगल। तो मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में एज अ फुल टाइम इंजीनियर एक्सपीरियंस लिखने के लिए कुछ कंटेंट था, बट जो लोग इंटर्नशिप वगैरह ऑलरेडी कर रहे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये इंटर्नशिप वाला सेक्शन ही यहाँ पे रखें, इंटर्नशिप्स को ही यहाँ पे एक्सप्लेन करें कि आपने इंटर्नशिप में कितनी बड़ी टीम के साथ काम किया, कैसे टाइप के आपने प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट किया, क्या लाइफ साइकिल आप फॉलो करते थे, वर देयर एनी अचीवमेंट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कई लोग यहाँ पे अपना रिसर्च पेपर, लाइक रिसर्च पेपर वाला जो पार्ट होता है, उसको अचीवमेंट में ना लिख के यहाँ पे ऐसे रिसर्च एक्टिविटी करके लिखते हैं और वहां पे अपने पब्लिश पेपर्स के लिंक डालते हैं। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रियली रियली इफेक्टिव, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट इफ यू हैव सम पब्लिश पेपर्स। Apart from that, there is one very very important piece of information in your resume, that is your projects. अब प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है along with like practicing data structures and algorithms, because projects will give the recruiter a feel that okay, this person is kinda into software development, they are trying to solve some problems. But project को list करते time you should always put hyperlinks. Again, you can see these blue links are hyperlinks. You should put hyperlinks to your GitHub, क्योंकि GitHub पे इसका सोर्स कोड होगा, और GitHub पे भी यू शुड पुट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट, या डिस्क्रिप्शन में आपने स्क्रीनशॉट लगाए, उसको प्रोजेक्ट को सेटअप करने की मेथोडोलॉजी लगाई, ताकि अगर कोई इंजीनियर उस प्रोजेक्ट को रेफर कर रहा है आपके रिज्यूमे की शॉर्टलिस्टिंग के लिए, सो दे कैन ऑल्सो यूज दैट एंड सी व्हाट इट एग्जैक्टली डज। एंड आप उसके बारे में 1 से 2 लाइन लिख सकते हैं, लाइक वेब ऐप टू सपोर्ट लाइव कोड शेयरिंग एंड चैटिंग फीचर। आप एक बार में उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं 1 से 2 लाइन में, अगर आपके पास स्पेस कंस्ट्रेंट है। वरना आई वुड से अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप नहीं है, देन प्रोजेक्ट्स आर द ओनली थिंग दैट यू आर गोइंग टू ब्रैग अबाउट। सो प्रोजेक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सप्लेन करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, दिस अचीवमेंट सेक्शन इज गोइंग टू बी योर ओनली सर्वाइवर, बिकॉज यहाँ पे आप अपनी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की प्रोफाइल्स लिखेंगे। एंड मैंने कहता कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग से यू विल लाइक लैंड अप समवेयर अ जॉब और समथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। Competitive programming is a sport programming, but definitely it will show as an achievement in your resume, and it shows that okay, the student is dedicated enough to work on something or to build products, so on and so forth. So this was all about कि आपको इन प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में और इंटर्नशिप के सेक्शन को कैसे हैंडल करना है। आप यहाँ पे 4 to 5 प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पेस एंड डिपेंडिंग आपने खुद से कितने प्रोजेक्ट करे हुए हैं। मैंने काफी बेसिक प्रोजेक्ट भी करे हैं, लाइक दिस मल्टीनोट इज जस्ट अ ब्लॉग ऐप, जस्ट अ बेसिक CRUD विद सम UI. This Evernote is also like very nascent kind of an app for React.js, but rest of the 3 projects, like this is a project I referred from a tutorial, this is a project I worked on, this is a project I worked on. So काफी सारी चीजों पे मैंने खुद से काम किया, कुछ के tutorials भी देखे थे, तो उनको भी mention किया। So like you should have a good mix and match, but I would highly recommend you should definitely have a project section. If you don't have a professional experience section, the major part should go with project, but as soon as you get professional experience, your project part should be shrinked a bit but not removed. So this was all about the project section, and let's just move to our next section. Now we are going to discuss about this section, skills. अब यह skills का एक ऐसा section होता है जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा चीजें लिख देते हैं। Skills is something that will show your expertise, कि आप किस चीज में expert हैं। You should only write that. अगर आप किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, you should definitely avoid writing that. जैसे मैंने फेबल में एंगुलर पे काम किया था, बट आई एम स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट विद एंगुलर, क्योंकि 1 से 1.5 महीने की इंटर्नशिप में आप कितना एंगुलर जान जाओगे। सो आई डोंट पुट एंगुलर एनीवेयर। ऐसे मैंने कई जगह और भी कुछ चीजों पे काम करा था। सो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट योर स्किल्स आर एज रिलेवेंट एज पॉसिबल, एंड इफ यू आर आस्क्ड एनीथिंग रिगार्डिंग दीज काइंड ऑफ स्किल्स in your interviews based on your profile, you are able to answer that. Otherwise it will give a very bad impression. Also I've also put data structures and algorithms. Data structures and algorithms यहाँ पे लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि यार हाँ यार आपका लॉजिक बिल्डिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट है. दैट्स व्हाई यू ऑल्सो ट्रीट इट एज योर स्किल. साथ ही साथ कोई भी एक बैक एंड फ्रेमवर्क, आई हैव मेंशन Ruby on Rails, it's like completely your choice to put if you want to put anything else. One front-end framework, I have put React.js because I worked with React.js for a significant amount of time. I've also worked with Angular and Ember, but I still believe that React is something for me.
एंड देन एनी वन SQL लैंग्वेज शुड बी देयर, क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट टीम में जाओगे, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे, आपको डेटाबेसेस से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना होगा. एंड राइटिंग अ स्किल लाइक डेटाबेस लैंग्वेज लाइक MySQL or maybe Oracle SQL, PG SQL, anything that you feel like is going to put a very good impression on the HR and the hiring manager that okay, this person is also skilled in database management system. Let's just try and give him or her a chance. So this is the part of the skills that you need to make sure. अब नाउ यू विल सी, अब आप लोग देखेंगे कि लास्ट के पार्ट पे मैंने एजुकेशन बिल्कुल ही लास्ट पे रखा है. एजुकेशन लास्ट पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि हमें पढ़ाया ही क्या गया है, बट आई बिलीव अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू इन माई प्रोफाइल. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर दो लोगों की प्रोफाइल साथ साथ शॉर्टलिस्ट हो रही होगी और दोनों की एग्जाम मैच करती होगी तो एजुकेशन शुड बी अ क्राइटेरिया, या एजुकेशन विल बी माई क्राइटेरिया कि मैं किसी को बीट कर जाऊंगा. सो आई हैव पुट इट इन द बॉटम राइट कॉर्नर. It's your choice. You can also put it here in the top left, and you should put your degree and your subject and your year and your corresponding university and your CGPA, like the latest CGPA that you have. So this was like my resume that helped me to get a job at LinkedIn as well as at Google. मैंने ऐसे ही सिमिलर रिज्यूमे से और भी जगह अप्लाई किया था. मेरा ये ओवरऑल रिज्यूमे 2 कॉलम रिज्यूमे है, बट अगर आपके पास थोड़ा कम कंटेंट है लिखने के तो काफी सारे 1 कॉलम रिज्यूमे भी आते हैं. मैंने किस वेबसाइट से ये रिज्यूमे बनाया है, आई मेड दिस यूजिंग overleaf.com. ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. आई मेड इट फॉर फ्री. What we should not put in our resume, I believe things like address or maybe a tagline of yours is not that effective. Having dead hyperlinks, कि आपने hyperlink पे क्लिक किया होगा, redirect नहीं हो रहा, that's also not something that will put a good impression on the recruiter. I would suggest कि अगर आप competitive profiles mention करें तो ज़्यादा better है. GFG and lead code की profiles की ज़्यादा relevance नहीं होती है. Education में you should definitely put your college, but school अगर put नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा आपका, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ज्यादा स्किल्स लिखने के ऊपर मत जाओ. अगर आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है बट आप उसमें एकदम फोड़ू हो, यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड. सो पुट एज मच एज लेस स्किल्स एज पॉसिबल, बिकॉज द मोर स्किल्स यू विल राइट, the broader opening will be there for the recruiter or the, I would say, interviewer to ask you questions around that. So this is also going to be something. Like, apart from that यार देखो certifications वाली जो बात है कि लोग certificates mention करते हैं कि मैंने यहाँ से कोर्स करा, यहाँ से कोर्स करा, फिर उसके सर्टिफिकेट का लिंक डालते हैं. I believe nobody cares about those certificates, बिकॉज सर्टिफिकेट का तो क्या है, फोटोशॉप से बहुत सारे सर्टिफिकेट वगैरह बन जाते हैं. इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट योर रिज्यूमे शुड शो योर स्किल्स रादर देन योर पेपर्स. सो स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करो, अपने पेपर पे या इस डिग्री पे या फिर आई वुड से सर्टिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस मत करो. स्किल्स शुड ऑलवेज मैटर. स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड योर रिज्यूमे शुड शो ऑल ऑफ योर स्किल्स. रिज्यूमे एक पेज से ज़्यादा का मत रखना, बिकॉज रिक्रूटर्स डोंट हैव गॉट टाइम to see a resume of 3 to 4 pages. There is a difference between a CV and a resume. You can like read about it, but a resume should be a 1-pager so that everyone can go through that resume as fast as possible. It should show your most important things. It should be highlighted. अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको बोल्ड करना चाहिए, italic करना चाहिए, you should do that. Consistent font maintain करके रखना है, ज़्यादा कलर्स नहीं डालने. एक बहुत ही important piece of advice, don't put graphics और कलर्स. ऐसे रेनबो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. डोंट पुट ग्राफिक्स योर फोटोज, नोबडी केयर्स कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है ATS का, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. सो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऑटोमेटिक फिल्टरिंग करता है रिज्यूमेस की. सो अगर ऑटोमेटिक फिल्टरिंग में ही आपका रिज्यूमे बाहर हो गया, देन आई वुड से दैट विल बी अ बिट प्रॉब्लमैटिक. क्यों ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक होगी? क्योंकि रिक्रूटर तक आपका रिज्यूमे पहुंचा ही नहीं, इतनी जो आपने मेहनत करी वो रिक्रूटर तक पहुंचा ही नहीं. और एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम क्या क्या चीज़ें देखता है? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम देखेगा कुछ कीवर्ड्स, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम देखेगा आपके एक्सपीरियंसेस, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम देखेगा आपके स्किल्स, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम देखेगा आपकी एजुकेशन, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम आपकी प्रोजेक्ट्स भी देखेगा. सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू चेक आउट सम गुड ATS रिसोर्सेज. आई विल ट्राई कि मैं कुछ फ्री ATS ट्रैकर्स या ATS रिसोर्सेज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं. दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज. Okay, so this was all about my resume that got me into LinkedIn, Google, and also helped me to get some other offers from companies like Dunzo, Sprinkler, Works Application, etc. So I would highly recommend you guys to please comment down below what other videos you want. I am getting really good suggestions. I'm going to make most of the videos. You guys are suggesting me very, very good things. I even want more such suggestions. So do comment on the video. What do you want? And a like would be of great help. अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, so I would be able to share my experiences with
as much as people as possible. So yeah, so that was about it. Do subscribe to the channel. Do check out some videos where I talk about some tech and other experiences of a lot of people around Google and Zomato and Target. So मैंने अर्नब भैया and प्रतीक भैया के साथ कुछ videos डाली हैं. So do check out on my channel, and we will come back soon with a new video. So till then, take care guys. Bye bye. Have a great week ahead. Keep yourself safe. Keep your neighbors safe. Keep your parents safe. Get vaccinated, and love you all.